Good evening, class. In last video, we have started a new chapter. The chapter was biodiversity and its conservation. Okay, so in this video, we have discussed so many things about the conservation of biodiversity and which types of factors are generally also causing the threat to the different types of plants and animals also. Okay, so after that we have already discussed that how we can save our biodiversity and which types of precautions and measurement we should apply to save different types of species which are generally concluded as plants and animals also. Okay, so in last video we have discussed the two most important major parts of conservation of biodiversity, and that was in situ conservation and ex situ conservation. So in situ we have seen the national park, zoological park, and so many things we have discussed, Ramsar sites, and we have also discussed or so many points we have discussed. But now today we are going to discuss the different features of ex situ, because we have already discussed the ex situ and in situ with definitions also, and their benefits, advantage and disadvantage we have already discussed, because so many times in situ and ex situ these types of questions may be asked in your board exam in several times, so you have to prepare in situ and ex situ in a detailed form. So ex situ, we are talking about the ex situ mode of conservation. So ex situ means the conservation of different types of plants and animals species in the different climate or different habitat, that is called ex situ. ex situ का मतलब होता है हम किसी भी एनिमल्स का, किसी भी जानवर या कोई भी प्लांट्स की वैरायटी है उनका अलग उनके हैबिटेट से किसी दूसरे हैबिटेट पे जब हम उनका कंजर्वेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन. उस कंजर्वेशन को हम एक्स सिटू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं. बट फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर फीचर्स ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन. दैट इज एक्स सिटू में इनके अलावा प्लांट और स्पीसीज, जो भी हमारे प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स, इनके अलावा और ऐसी कौन कौन सी चीजें, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर by which we can conserve in the mode of ex situ conservation. हम ex situ के अंतर्गत ऐसी सारी चीजों को कवर कर सके. So first we are going to discuss the most important property, and that is called seed bank. हम इस ex situ के means पे seed bank का भी हम क्या करते हैं, जनरली कंजर्वेशन का काम करते हैं. So how we generally conserve the seed generally a place where the germplasm is conserved in the form of seed. यहाँ पे जो germplasm होता है, ठीक है, we have studied so many times in plant section. जो germplasm होता है वहाँ पे इसको हम seed के फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं, that is called seed bank. इसको हम seed कहते हैं. And second thing is that we have to also collect so many seeds of dry seed, not a liquid in a form, not a moisture is there, ठीक है. So we have to collect the only dry seed by which we can use for a long time process. Why? Because dry seeds required a little bit of system to place in a proper order. Why? The seeds of dry are generally nature's, and we can also use dry seed in our future purpose also. And dry seeds require low temperature, low pressure, and also they have great potential of रेजिस्टेंस टू डिजीज. ओके, सो सीड के पास ये सारी कैपेसिटी होनी चाहिए दैट कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व इन द मोड ऑफ सीड बैंक, जिसको हम सीड बैंक के कंपैरिजन में हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि हम उसे फ्यूचर यूज में ज्यादा से ज्यादा उसका यूज कर पाए. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द सीड बैंक. नाउ next we are going to discuss the cryo bank. What is the meaning of cryo bank? Because so many times in your board exams these types of questions may be asked. cryo banks की बात करता हूँ. Store wide variety of tissues. इस cryo bank में wide varieties of tissues and wide varieties of cells are generally conserved for the medical purpose, या फिर इम्प्लांटेशंस वगैरह के लिए भी हम बहुत सारे सेल्स और बहुत सारे टिश्यू को कंजर्व करने का काम करते हैं. ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस वर्ड, बिकॉज it is the storation of wide varieties of tissues and wide variety of cells in the state of deep freeze mode. deep freeze mode में इनको हम स्टोर करते हैं. by we have to use this cells and tissue in implantations, in cutting and wounds, and also we can use a plastic surgery and many more medical parts. बहुत सारे medical parts में हम इस cryo bank का use कर सकते हैं. and there is also different things is also considered in that part. what is the part? उस part में अगर हम देखेंगे, it also store sperm और semen. we know that sperm कहते हैं या sperm bank कहते हैं, and semen bank भी होते हैं अलग अलग different type के. ठीक है, so semen bank
के लिए अलग बनाते हैं, स्पर्म के भी जनरली वही चीज है, इसके लिए भी अलग बैंक बनता है, ब्लड बैंक ऑल्सो वी नो वेरी वेल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम इसकी बात करते हैं, एंड दिस ऑल द प्रोसेस आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉर थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी के लिए इस सीमेन का यूज जो है, जो डोनर होते हैं स्पर्म डोनर करने वाले, उनका यूज जो है थर्ड पार्टी के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यूज होता है ओवम और स्पर्म को फ्यूज करके जाइगोट बनाने के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पार्ट वी जनरली यूज बाय यूजिंग अ बायोडाइवर्सिटी वर्ड। बायोडाइवर्सिटी के वर्ड से हम इन सारी चीजों को जनरली ह्यूमन बींग्स पे भी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, on the basis of that we are going to discuss the endangered species. Endangered word means some organism are there but they have a threat to destroy oneself. उनको डर सताता है कि वो कहीं खुद ही खत्म ना हो जाए। So these are called endangered species. उनको हम endangered कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला endangered का जो पहला क्लासिफिकेशन है that is called extinct. Extinct का मतलब होता है those organisms which are totally destroyed from the nature. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरी तरीके से, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल्स, जो पूरी तरीके से हमारे नेचर में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, देयर इज नॉट अ सिंगल स्पीसीज इज लेफ्ट ओवर ऑन आवर अर्थ, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट। उसे हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। एग्जांपल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक एंड यू कैन रीड इट। इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड का मतलब as I already told you that endangered means होता है those species which have the threatening to destroy their habitat, to destroy their habitual action and destroy their own self. ऐसे species जिनको खुद ही अपने आप को डर सताता है कि हमारा हैबिटेट खत्म ना हो जाए, हम खुद ही खत्म ना हो जाए, सो दीज आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज, या जिनको डर होता है खत्म होने का। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज के डेट में भी विदाउट प्रॉपर कंजर्वेशन दे आर टोटली गोइंग टू डिक्लाइन पीरियड। उनका जो डिक्लाइन मतलब होता है नीचे की तरफ उनका ग्राफ गिर रहा है, और वो हमारे पूरे स्पीसीज जो है कंटिन्यूसली डिक्लाइन पीरियड में जा रहे हैं, मतलब उनकी डेथ होते जा रही है। ओके, नेक्स्ट, वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है those species which belongs to both the categories, means ऐसे species जो दोनों कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एक्सटिंक्ट को भी endangered को भी। So those species which follow the rules of extinct and endangered, these are called vulnerable species. Vulnerable का मतलब होता है ये ऐसे species होते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, या तो वो खत्म हो भी सकते हैं या फिर उन्हें डर भी रहता है कि they can also destroy and they can also vanished. So that is called the vulnerable. इसको हम vulnerable कहते हैं। Next, rare. रेयर का मतलब होता है इट इज नॉट अ मीनिंग ऑफ डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब ये नहीं कि रेयर स्पीसीज है तो ये खत्म हो रही है। रेयर इन द सेंस मींस दीज स्पीसीज आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत ही कम संख्या में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड रेयर स्पीसीज। इसको हम रेयर स्पीसीज कहते हैं क्योंकि इनकी जो प्रजाति है, वी हैव स्टडीड दैट व्हाइट टाइगर वगैरह जितने भी होते हैं, ये सब जितने हैं इनकी वैरायटी कम है हमारे अर्थ पे, और ये काफी दिनों के लिए टिक नहीं पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज threatened. Threatened का मतलब होता है generally threatened species means some of the organisms they have great fear for human beings, क्योंकि उन्हें डर सताता है हमेशा ह्यूमन बींग्स का। वाई? बिकॉज ह्यूमन बींग्स ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय देयर हैबिटेट्स फॉर यूजिंग देयर पर्सनल यूज। उनके पूरे हैबिटेट्स को बिगाड़ कर, वेदर इट इज फॉरेस्ट या फिर कोई जंगल है, उसको बिगाड़ कर अपने घर को या अपने घर की किसी भी चीज को बनाने के लिए जनरली मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स बिकम इनरिस्पॉन्सिबल ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, ऐसे स्पीसीज को एक डर सा बन जाता है कि अगर उनके हैबिटेट में कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ तो उनका जो हैबिटेट है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इट मींस देयर स्पीसीज आल्सो हैव थ्रेटन टू वैनिश। उनको डर सताने लगता है कि वो भी इन फ्यूचर क्या हो जाएंगे, वैनिश हो सकते हैं। Okay, most important. Next, out of danger. ऐसे species those are generally conserved in a natural way without any fear of vanishing. इनको किसी भी टाइप के किसी भी environment की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि ये अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि they know exactly they generally saved from the biodiversity system, क्योंकि उनको biodiversity system के हिसाब से उनको कंजर्व किया जा चुका है। So they are future saved organism, ये फ्यूचर के लिए सेव्ड हो जाते हैं। So they are out of danger, ये out of danger होते हैं। ठीक है, इनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता, बिकॉज वी प्रोवाइड लॉट्स ऑफ area and lots of food material and proper pathological treatment we also provide to several types of organisms which are ill, जो बीमार होते हैं उनके लिए। So इनकी प्रजाति वो पूरी तरीके से सेफ है। Okay, so next part
वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसे कौन कौन से कारण है जिससे हमारे जो स्पीसीज है, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर जनरली गोइंग टू वैनिश, जो कि खत्म होने की कगार पे है। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट का मतलब होता है उनके पूरे हैबिटेट को क्या करना, खत्म कर देना बाय देयर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड मोस्टली इट इज डन बाय द ह्यूमन बींग्स, यानी सबसे ज्यादा ये ह्यूमन बींग्स के कारण हो रहा है, तो सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है। ओके, सेकंड pathological factor. Pathological factor is also a key role. Why? Because several types of disease are generally occurring in your community level, and if one of the species become diseased, it means the disease will spread in all the community level. अगर एक भी जानवर उनमें से अगर बीमार हुआ, पूरा का पूरा कम्युनिटी लेवल बीमार हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल फैक्टर। इस कारण से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है और वो इंडेंजर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट, biotic and environment factor. Biotic and environment factor is also responsible for the endangered species. ये इनके लिए environment change होगा, which may be arises of temperature या falling of temperature, humidity बढ़ेगी, pressure बढ़ेगा, कुछ biotic factors आएंगे जिस कारण से हमारे species के जो numbers है वो continuously decline करते जाते हैं. So that is all about the factors of causes of endangered species. Okay, so next we have to take a look of special features which are generally taken by the government and different types of NGOs. हम ऐसे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स है जिसमें एनजीओ ने स्पेशल रिमीडियल एक्शंस लिया है हमारे इन पूरे ऑर्गेनिजम्स को बचाने के लिए। सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। Project Tiger is a special project. Why? Because in this the conservation of tiger, because we know that tiger is our national animal, so most important we have to preserve tiger. So according to Wildlife Fund, they have created a special project on the conservation of tiger in 1972. This was the planning action when it taken place at this year, and that time the total aim to project different types of tigers which are found in our India in a one places without any disturbing their habitats, यानी उनके habitats को बिना disturb किए उनको वहां से पिक करके किसी खास जगह पे रखना ताकि उनको proper care मिल सके। Next, गिर लॉयन प्रोजेक्ट। गिर लॉयन प्रोजेक्ट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन गुजरात। ये गिर लॉयन प्रोजेक्ट जो है आपके गुजरात में अवेलेबल है एंड इट इज ऑल्सो टेकन प्लेस इन 1972 में इसको भी स्टार्ट किया गया था। एंड मोस्टली अगर हम बात करें व्हाट वाज द प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट क्या था गिर लॉयन प्रोजेक्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन। जो एशिया के लॉयंस थे उसको प्रिजर्व करने का, उसको कंजर्व करने का काम था कि उनके लाइफ को, उनके हैबिटेट को, उनके एटमॉस्फेयर को जो भी है विदाउट एनी इंटरफियरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वी कैन प्रोटेक्ट देम एंड वी कैन ऑल्सो इनहांस देयर जनरेशन, जीन पूल को बनाए रखना। सो इन 1968 द टोटल स्पीसीज ऑफ लॉयन इज 177 बट present time it is increased to 500. It means the Gir Lion project की बात करते हैं when it is launched in 1972, that time in 1968 the total number of lions is 177 but now till we have 500. It means their number is increased. Why? Because due to their reproduction and maintaining of gene pool. Okay, इनके जीन पूल को मेंटेन करने के बाद ये सारे स्ट्रक्चर्स और सारे आंकड़े हमारे सामने आते हैं। ओके, नाउ crocodile project. Crocodile project means in India there is a 3 special types of varieties and species are found as crocodile. Crocodile की 3 variety हैं. So due to the recommendation of Dr. H.R. Bustard has given the recommendation to we should always protect the crocodile and crocodile is also important. ठीक है, crocodile भी है तो इसके लिए उन्होंने crocodile project को launch किया। इनके recommendation के कारण it is not important because Project Tiger and Gir Lion project is most important. So many times these 2 topics generally asked in your board exams. Okay, next. एलिफेंट प्रोजेक्ट। एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जनरली इट इज लॉन्च्ड इन 1992 एंड दैट टाइम एंड मोस्टली करंटली की अगर हम बात करते हैं तो उनकी स्पीसीज भी काफी कम थी और प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं अप्रॉक्स जो एलिफेंट्स के टोटल नंबर है दैट इज 2200 अप्रॉक्स 2200 यानी 200 के अप्रॉक्स जो है हमारे पास प्रेजेंट टाइम में एलिफेंट्स हैं और भी इससे ज्यादा हो सकते हैं। इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल या फिर हम इसे कह सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेट डाटा है, इसके अलावा भी कुछ बढ़ते हैं कुछ कम होते जाते हैं। ठीक है, सो ये बहुत पहले दिया गया था, अब इसमें चेंजेस आ चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं रेड डाटा बुक। ओके,
Red Data book is the most important book which is generally consists of the different types of record of plants and animals. बहुत सारे Red Data book जो first of all it is launched in 1st January 1972 and it also store the lots of information regarding the plants and animal species. मतलब जो हमारा 1 जनवरी 1972 में जब ये बुक्स पब्लिश हुआ था दैट टाइम इसकी कैपेसिटी थी कि बहुत सारे जानवरों के बारे में बहुत सारे प्लांट्स के बारे में ये क्या करता था उनके डाटा को स्टोर करता था और वो जो डाटा इनके स्टोर होते थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जिससे हम उनके बारे में केस स्टडी कर सकते थे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट द प्रोटेक्शन. सपोज दोज ऑर्गेनिज्म विच आर जनरली कंजर्व्ड इन अ प्रॉपर वे. सो प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीज़ें हम यूज करते थे विच आर जनरली मेंशन्ड इन रेड पेजेस ऑफ दिस बुक, हम उसमें रेड पेजेस का यूज करते थे उस रेड डाटा बुक के लिए. सेकेंड वे वी हैव टू यूज डिफरेंट पेजेस इन द रेड डाटा बुक में हम अलग अलग पेजेस के बारे में देखते थे. ठीक है. सपोज ऐसे ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही कम है हमारे इंडिया में, तो वो इंडिया में कम होने के साथ साथ उनको डर रहता है. दे हैव द साइन ऑफ डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, मतलब उनको खत्म होने का डर होता है. दैट टाइम दिस टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर जनरली मेंटेन्ड इन व्हाइट पेज. उस टाइम पे इसको हम व्हाइट पेज में मेंशन करते थे. ओके. द पॉइंट नंबर थर्ड, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग का मतलब अगर हम बात करते हैं ऐसे स्पीसीज जो कि जनरली उनका ग्राफ डिक्लाइन पीरियड में जा रहा है, इट मींस दे आर गोइंग टू डिक्रीज, है ना, यानी खत्म होने वाले हैं. सो दीज आर जनरली मार्क्ड एज येलो पेजेस. उसको जो है हम येलो पेज में मार्क करते थे ऐसे स्पीसीज जो खत्म होने की कगार पे है. नेक्स्ट, description is not available. Some of the organism have a very little amount of information. ऐसे कुछ organism होते थे जिनका हमें जानकारी बहुत ही कम यानी अधूरा मिलता था. That is called which is mentioned in brown page, जो कि हम brown page में mention करते थे. So in red data book we have to study different colors of pages. क्यों पढ़ते थे अलग? अगर हमें किसी भी organism को प्रोटेक्ट करना है तो हम उसकी जानकारी रेड पेजेस में मेंशन करते थे. अगर कोई स्पीसीज को डेंजर ऑफ एक्सटेंशन है मतलब खत्म होने का डर है विच इज मेंशन इन व्हाइट पेजेस. अगर किसी ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जा रहा है विच इज मेंशन इन येलो पेज. नेक्स्ट, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी जानकारी हमें बहुत कम है विच इज नॉट अ फुली गिवन, सो दैट इज मेंशन इन ब्राउन पेज. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर totally and perfectly conserved are generally mentioned in green pages. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम टोटली कंजर्व कर चुके हैं, जो पूरी तरीके से सेव्ड है, दैट आर मेंशन इन ग्रीन पेजेस. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेड डाटा बुक. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो टेक सपोर्ट फ्रॉम द IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट द full name and full form in your notebook so that all the things become easy for you. So this is all about the biodiversity and its conservation. Most important point in this chapter is in situ and ex situ and different types of causes of destruction of different types of species. Red data book and natural parks, zoological parks we have already studied. So you have to revise all the important topic. And after that I will also send you the special notes of biodiversity and its conservation, so you have to mention everything in your biology fair copy. And if you have any doubt regarding my topic, you can contact me. Thank you, students.